Good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 5, theme 5, and your theme 5 is chapter 5 is Through the Eyes of Travelers, Perception of Society, 10th to 17th century. In this chapter, we have discussed about Al-Biruni in the little bit information I have given you in my previous video. The topic, the Kitabul Hind. Al-Biruni's Kitabul Hind, written in Arabic, is simple and lucid. It is the voluminous text divided into 80 chapters on subjects such as the religion and the philosophy. Subjects such as religion and philosophy, festival, astronomy, volcanic manners and customs, social life, weight and measurement, iconography, law and meteorology. Generally, though not always, Al-Biruni adopted a distinctive structure in such chapter, beginning with the question, following this up with the descriptions based on Sanskrit traditions, and the concluding with a comparison with other culture. Some present scholars have argued that this almost the geometric structures remarkable for the precision and the predictability owned much the mathematical orientation. Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended his work for the people living along the frontiers of the subcontinent. He was familiar with the translation and the adaptations of Sanskrit, Pali, and Prakrit text into Arabic. These ranged from the fables to work on astronomy and medicine. However, he was also critical about the way in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. My dear student, this is very important things what we are going to read. किताबुल हिंद. किताबुल हिंद अल-बरूनी की बुक थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी. अल-बरूनी की ये किताब जो एकदम इजी लैंग्वेज में क्लियर एक्सप्रेस करने का जो उसका माध्यम था अल-बरूनी का, वो एकदम यूनिक था. ये एक विस्तृत ग्रंथ है, एक विस्तार से एक्सप्लेन किया गया ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, भारतीय त्यौहार, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मेडिकल साइंस, कस्टम्स, रिचुअल्स, लॉ, वेट एंड मेजरमेंट और विज्ञान के विषयों के आधार पर इस किताबुल हिंद को 80 अध्याय में बांटा गया, 80 चैप्टर में डिवाइड किया गया है. इस बुक में अल-बरूनी ने कुल 80 चैप्टर लिखे. ये 80 चैप्टर में भारत के हर क्षेत्र को जुड़ा, दर्शन, धर्म दर्शन, खगोल विज्ञान, मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, धातु विज्ञान, बाट माप, त्यौहार, रीति रिवाज और भी बहुत सारी चीज़ों को उसने इन आधार बनाया अपने किताब के चैप्टर लिखने में, और बड़ी विद्वता के साथ उसने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया. आई मीन टू से दैट अल-बरूनी divided their book Kitabul Hind into 18 chapters. The 18 chapters have the various informations. The chapter divide on the basis of philosophy, on the basis of customs, medical science, astronomy, and the various science categories, rituals and customs, religions, cultural development, language, and law and meteorology, iconography,
art and architecture, everything what he saw here. He explained, he compiled all the information in his text and divided into various chapters. In Kitabul Hind, there were 80 chapters. Generally, thought not always Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with the questions, following this up with the descriptions based on Sanskrit traditions, and concluding with the comparison with other culture. कहता है कि जनरली, दो नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन सामान्यतया अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक क्या एडॉप्ट किया, क्या डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर को, एक विशिष्ट शैली को इन ईच चैप्टर, बिगनिंग, प्रत्येक अध्याय को लिखने में उसने एक विशिष्ट शैली का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया. कहता है बिगिनिंग विथ क्वेश्चन, वो आरंभ में एक प्रश्न करता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में संस्कृतियों के साथ एक तुलना. कहता है चैप्टर की शुरुआत होकर एक क्वेश्चन से करता है और क्वेश्चन के बाद उसका आंसर लिखता है और आंसर के बाद उसको कंक्लूड करता है, उसकी स्टोरी बताता है. ये जो वे था वो अपने में यूनिक था. चीज़ों को अगर ध्यान से देखें तो आपको पूरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि वो कैसे एनालिटिकल अप्रोच से इस बातों को एक्सप्लेन कर रहा था, किस तरीके से उस बातों को कह रहा था. और जब क्वेश्चन पूछता है, वो संस्कृतियों की तुलना करता है, तो आज के विद्वान ऐसा तर्क करते हैं, ऐसा मानते हैं कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता तथा जो वो पूर्वानुमेयता के साथ उल्लेखनी है का एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित क्यों चुका होता है. कहता है अल-बरूनी ऐसा कैसे करता है. अल-बरूनी क्वेश्चन पूछना, फिर क्वेश्चन का जवाब लिखना, फिर कंक्लूजन करना, ऐसा कैसे करता है. कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अल-बरूनी का ये तरीका उसके गणित की नॉलेज के आधार पे है. जैसे गणित में, मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करने के बाद उसको फाइनली आंसर निकाल लेते हैं. जैसे ज्योमेट्री में देखें तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस लास्ट में आप लिखते हैं इति सिद्धम, हेंस प्रूव. तो हेंस प्रूव्ड करने के लिए उसको पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही आप हेंस प्रूव लिखते हैं. ठीक उसी तरीके से अल-बरूनी अपने इस किताब को लिखने में क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन करना, फिर उसको उत्तर देना और फिर उसको फाइनली कंक्लूड करना का काम वो कर रहा था. अब कहता है अल-बरूनी, जिसने लेखन में भी अरबिक भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियाँ, अपने ये लेख लिखे, अपने जो बुक लिखा, उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी लिखी थी. वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरण करता था, उनसे परिचित था. इन भाषाओं में परिवर्तन करके दंत कथाओं, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान संबंधित कृतियों के साथ साथ उन ग्रंथों और लेखन सामग्री का विषय भी उस दृष्टिकोण के आलोचनात्मक अध्ययन का विषय था, जिनको उसने समझा, इसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया. कहता है कि अल-बरूनी ने, यद्यपि अल-बरूनी हु रोट इन द अरेबिक probably intended his work the people living along the frontiers of the subcontinent. अल-बरूनी यद्यपि अरेबिक लैंग्वेज में लिखता था, अरेबिक भाषा में लिखने का, उसको लिखने की शैली अरेबिक थी, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाहर के देशों में, बाहर के महाद्वीपों के लोग भी इनकी भाषा को समझ सकें और साथ साथ बाहर के लोगों के द्वारा जो बातें थी, जो उनकी टेक्स्ट थी, उसको यहाँ के लोग भी समझ सकें.
संस्कृत, पाली, प्राकृत टेक्स्ट जो थे उनका अरेबिक रूप में सीधे ट्रांसलेट किया उसने। ही रेंज फ्रॉम द फेवर्स टू वर्क ऑन द एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, और उसका जो काम है काफ़ी बड़ा है, बृहद है। एस्ट्रोनॉमी पे, मेडिकल साइंस पे, मेडिसिन्स पे। हाउएवर ही आल्सो द क्रिटिकल अबाउट द वे इन विच दीज टेक्स्ट वर रिटेन एंड क्लियरली वांटेड टू इम्प्रूव ऑन देम। वो इन किताबों का सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं करता, बल्कि इनके इस किताब की एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी करता है। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इनकी कमियां, इनकी अच्छाइयों को भी बताता है और कहता है कि इसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। अब एक वर्ड है हिंदू, बहुत कॉमन वर्ड है, हिंदू को एक्सप्लेन कर लें। कहता है द टर्म हिंदू वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड पर्सियन वर्ड यूजेस 5th century BC to refer the region east of the river Sindhu. The Arabs, they continued the Persian uses the called the region Al-Hind and its people Hind. Later the Turk referred to the people east of the Indus as a Hindu. Their land as Hindustan and their language is Hindavi. None of these expressions indicate that the religion identity of the people. It was much later than them developed the religious क्या हिंदू शब्द लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीन फारसी पर्सियन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के लिए किया गया। इसके पूर्व के क्षेत्रों में, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लोगों के लिए इसका प्रयोग किया गया था। से ये शब्द निकला हिंदू, अल हिंद। पूर्व के क्षेत्रों को अल हिंद कहा गया और अल हिंद से ये शब्द निकला। इस क्षेत्र को जो नदी के पूरब था उसे अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा गया। कालांतर में जो तुर्क सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कह दिए, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी के नाम से जाना जाने लगा। इस शब्द की धार्मिक पहचान का कोई द्योतक नहीं है। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में भी प्रयोग बहुत बाद में होता है। मतलब एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन कि हिंदू किसी धर्म के लिए कहा गया शब्द नहीं है। हिंदू जो शब्द है वो किसी रिलीजन के लिए नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए पर्सियन के द्वारा की गई व्याख्या है। पर्सियंस उसकी व्याख्या कैसे करते हैं? उसे कहते हैं कि जो लोग इंडस रिवर के पूर्व रहते हैं, इंडस रिवर के पूर्व के क्षेत्र को अल हिंद कहे। पूर्व के क्षेत्र को, एरिया को अल हिंद कहा गया। इस एरिया में रहने वाले लोगों को हिंदी कहा गया और जो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उनको ये लोग हिंदवी कहे। इस तरीके से जो जिस क्षेत्र पे हिंदू रहते थे, हिंदी रहते थे और हिंदवी भाषा बोली जाती थी उसे हिंदुस्तान कहा गया। यहाँ पे ये शब्द किसी भी तरीके से धर्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना ही धर्म को इंडिकेट कर रहा। इसलिए हिंदू कोई धार्मिक शब्द नहीं, हिंदू किसी धर्म को एक्सप्लेन नहीं करता। ये बात का क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अल-बरूनी अपनी किताबुल हिंद में करता है। अब कुछ चीज़ों को देखिए। फिगर 5.2 इलस्ट्रेशन फ्रॉम द 13th century the Arabic manuscripting showing and the Athenian, the statesman and poet Solon, who lived in the 6th century BC, addressing his student, noticed the clause they shown. कह रहा है कि एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ बता रहा है, जो एथेनियन है, उनके कपड़ों को ध्यान दीजिए, वो क्या पहने, इन चीज़ों को देखिए, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या बातें, किस कल्चर के बारे में हम यहाँ एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं।
द बर्ड लीव इट्स नेस्ट। यहाँ पे एक दूसरा पेंटिंग्स है, हालांकि ये पेंटिंग्स रिहला से ली गई है। अलबरूनीज की बुक, सॉरी इब्न बतूता की बुक रिहला से ये ली गई है। हम इब्न बतूता को जब पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरीके से कहता है कि मैं अकेले निकला, मेरे साथ कोई नहीं था, फिर मैं किसी के साथ जुड़ा और एक लंबी यात्रा करने के बाद भारत पहुंचा। कहता है मैं रिटर्न होम इन 1354 में 1354 में 30 सालों के बाद फिर किस तरीके से भारत की लंबी यात्रा के बाद अपने देश लौटा। इन चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ेंगे। अब इब्न बतूता को देखिए। इब्न बतूता, मैंने इसके बारे में बताया था कि इनका नाम अबू रेहान अल बलदान इब्न बतूता था। इब्न बतूता भी पढ़ा लिखा था, स्कॉलर था। ये अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था और भारत में ये सल्तनत काल में भारत आया था। सल्तनत काल में उस समय तुगलक वंश का शासन था और जब भी भारत पहुंचा उसमें भारत में सल्तनत की गद्दी पे मोहम्मद बिन तुगलक आसीन था, सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था जब इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता भी पढ़ा लिखा था, योग्य था। इब्न बतूता ने जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बताया, वो सारी चीज़ें अपने में महत्वपूर्ण थी। इब्न बतूता को पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, लेकिन बाद में उसके ऊपर करप्शन का आरोप लगा और उसे जेल में डाल दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद उसे इब्न बतूता ने उसने क्षमा याचना की तो उसको छोड़ दिया गया और फिर इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना करके चीन भेजा। चीन में आधे रास्ते से ही इब्न बतूता जहाज़ के ख़राब हो जाने के कारण वापस लौट आया और फिर यहाँ से अपने देश लौट गया। अपने देश मोरक्को जाकर के उसने एक किताब लिखी। किताब का नाम था, बुक का नाम था रिहला। रिहला में उन सारी बातों को लिखता है जो उसने भारत में अनुभव किए, जो उसने भारत में देखे, भारत की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक विशेषताएँ, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, बाजार, और सबसे बड़ी बात जो रिहला में एक्सप्लेन करता है वो कहता है कि तुगलक काल में, स्पेशली गियासुद्दीन तुगलक के समय, जो पोस्टल सिस्टम थी, जो डाक व्यवस्था थी, एकदम यूनिक थी। डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता के द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी मूल्यवान और महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के लिए। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। 2 इब्न बतूता एंड रिहला। 2.1 द अर्ली ग्लोब टार्टर। द अर्ली ग्लोब टार्टर, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा था। ग्लोब टार्टर, हु वाज ग्लोब टार्टर, कौन था ग्लोब टार्टर? तो इब्न बतूता वाज ग्लोब टार्टर। इब्न बतूता's book Two Travels called Rihla, written in Arabic, provides extremely rich in interestingly details about the social and cultural life in the subcontinent in the 14th century. This Moroccan traveler was born in Tangier into one of the most respectable and the educated family known of their expertise in the Islamic religious law or Sharias. True to the traditions of the family, Ibn Battuta received the literary and the scholastic education when he was quite young. Unlike most other members of his class, Ibn Battuta considered the experiences gained through travel to be the more important sources to knowledge than book. He just loved traveling and went to far off places, exploring new world and people before he set off for India. In 1332-33, he had made the pilgrimage trips to Makkah and had already traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman, and few trading ports on the coast of East Africa. Traveling the overland through the Central Asia, Ibn Battuta reached Sindh in 1333. He had heard about the Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi, and learned by his the reputation as the generous patron of art, and later set off
for Delhi, passing through Multan and Uch. The Sultan was impressed by his scholarship and appointed him that Qazi or judge of Delhi. He remained in that position for several years until fell out the fever and was thrown into Persian once. The misunderstanding between him and the Sultan was cleared. He was restored to imperial service and was an order in 1342. The proceeded to China as the Sultan's envoy to the Mongol ruler. With the new assignment, Ibn Battuta proceeded to the Malabar coast through central India. From Malabar, he went to the Maldives where he stayed for 18 months as the Qazi, but eventually decided to proceed to Sri Lanka. He then went back once more to the Malabar coast and the Maldives, and before resuming his mission to China, visited Bengal and Assam as well. He took a ship of Sumatra and from there another ship for the Chinese port town of the Jaitum, now known as the Quezhou. He travelled the extensively China going for the Beijing but did not stay for long, deciding to return home in 1347. His account is often compared with that of Marco Polo. His account is often compared with that Marco Polo who visited China and also India from his home base in the Venice in late 13th century. Ibn Battuta meticulously recorded his observation about new culture, people, beliefs, values, etc. We need to bear in mind that the globetrotter was traveling in the 14th century when it was much more the arduous and hazardous to travel than it is today. According to Ibn Battuta, it took 40 days to travel from Multan to Delhi and about 50 days from Sindh to Delhi. The distance from Daulatabad to Delhi was covered in 40 days, while that from the Gwalior to Delhi took 10 days. The travelling was also more in cases. Ibn Battuta was attacked by bands of the robbers several times. In fact, the preferred travelling in the caravan along with the companions, but this did not the Tatar highway robbers. While travelling from the Multan to Delhi for the instances, the caravan was attacked and many of the following travellers lost their lives. Those travellers who survived, including Ibn Battuta, were severely wounded. My dear student, in this whole paragraph, we read about Ibn Battuta and their book Rihla, what he wrote about India, about Sultanate periods, society and culture. इब्न बतूता ने भारत के बारे में क्या लिखा, यहाँ की संस्कृति सभ्यता के बारे में क्या लिखा, इस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा करता था। अपनी यात्रा वृत्तांत, उसकी जो ट्रेवलर्स अकाउंट है, उसको रिहला कहा गया। 14th सेंचुरी में इंडियन कॉन्टिनेंट में जो सोशल एंड कल्चरल जो एस्पेक्ट्स थे, लाइव्स थे, उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो लिखता है, बताता है अपनी इस बुक में। मोरक्को का यह यात्री इब्न बतूता का जन्म जो मोरक्को का था, तंजीर में हुआ था। तंजीर के सबसे सम्मानित परिवार में, जो शिक्षित परिवार माना जाता था, कम से कम इस्लामिक कानून शरिया का जानकार था, वो परिवार जिसमें तंजीर में इसका जन्म हुआ।
मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामिक कानूनों और शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र की शिक्षा हासिल कर ली। इस्लामिक लिटरेचर एंड इस्लामिक फिलासफी ही गेन्ड द मेनी मोर नॉलेज अबाउट दैट। अपनी सीढ़ी के unlike the most other member of his class, Ibn Battuta considered the experience gained through travelers to be the more important sources to knowledge that books. कह रहा अपनी सीढ़ी के कुछ अन्य सदस्यों के विपरीत, अपने तरह के कुछ अन्य लोगों के से अलग हटके इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव का ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। वो मानता था कि जो किताबों में लिखी गई है उसकी तुलना में यदि हम आंखों से देख के उसको समझें तो वो ज़्यादा अच्छा नॉलेज माना जाता है। दैट इज द एक्चुअल वे टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। ही नो वेरी वेल, वो जानता था, इब्न बतूता इस चीज़ को जानता था कि हम किताबों में लिखी गई चीज़ों को पढ़ने से अच्छा यदि हम उसे आंखों से देख के सीखे समझे तो ज़्यादा अच्छा नॉलेज माना जाता है, तरीका उसका अच्छा माना जाता है। इसीलिए उसने यात्राएं करने का बहुत शौक था और वो नए नए देशों में लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक के क्षेत्रों में गया। 1332 टू 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, फिर इराक, फिर फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। वो भारत आने के पहले उसने कई सारी जगहों पर घूमा। कह रहा है कि बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया इन 1332-33 he had made pilgrimage trip to Makkah and already traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman and few traditional port of the East Africa. पूर्वी अफ्रीका के कोस्टल रीजन, तटवर्ती इलाकों के कई सारे शहरों को घूम चुका था भारत आने के पहले ही। ट्रेवलिंग ओवरलैंड थ्रू द सेंट्रल एशिया, मध्य अफ्रीका के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग जो लैंड रूट थी से होते हुए सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली सल्तनत और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक शिक्षा और साहित्य का बड़ा संरक्षक था, दयावान, दानशील और एक महान शासक के रूप में सल्तनत का वो जाना जाता था। उसके बारे में पूरी सूचना उसके पास थी, अतः वो दिल्ली पहुंचना चाहता था। उसने दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पहुंचने के लिए, जो कला और साहित्य के बारे में उसका दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति आकर्षित कर चुका था, मोहम्मद बिन तुगलक मुल्तान उच्च होते हुए दिल्ली पहुंचा। लैंड रूट के थ्रू, स्थल मार्ग के इस्तेमाल करके वो मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने। सुल्तान से मिलके, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलकर के द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड द काजी ऑफ द जज ऑफ द दिल्ली। सुल्तान उससे मिला, बहुत खुश हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, इस्लामिक कानूनों का मुखिया बना दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सुल्तान और उसके बीच। एक तरफ सुल्तान उससे बहुत प्रभावित हुआ, उसकी विद्वता से नगर का काजी बनाया, फिर उसके ऊपर कुछ आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे। उसने ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी और इससे सुल्तान बड़ा नाराज हुआ। कहता है कि इससे वो अपना विश्वास खो दिया सुल्तान की निगाहों में और सुल्तान ने उसे कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया, कारागार में कैद कर दिया। और फिर बाद में सुल्तान और उसके बीच की जो गलतफहमी थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो थोड़ी दूर हुई
और फिर उसको राज की सेवा में ले लिया, लेकिन इस बार उसे अपना एम्बेसडर बना करके उसे चीन भेजा 1342 में मंगोल शासक के दरबार में। अपनी नई नियुक्ति, अपना न्यू अपॉइंटमेंट जो उसको मिला था, उससे विथ ए न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता प्रोसीड टू द मालाबार कोस्ट। अपने नए असाइनमेंट जो उसको नई पोस्ट मिली थी उसके लिए इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते, मिडिल इंडिया के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार इंडिया का साउदर्न कोस्टल रीजन, केरला, आज का जो केरल है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, कर्नाटक का जो क्षेत्र है, वो मालाबार कहलाता है। तो वो मध्य भारत होते हुए मालाबार पहुंचा। मालाबार से वो मालदीव गया, जहाँ वो करीब करीब 18 मंथ रहा। वहाँ भी काजी के पद पे रहा। एक बार फिर मालाबार तट तथा मालदीव से होते हुए चीन जाने का अपना कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वो बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीन बंदरगाह के नगर जायतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, जायतून नोन एज क्वांझू, पहुंचा। सुमात्रा, जावा, असम, बंगाल होते हुए वो फिर जायतून बीजिंग यात्रा करने लगा। उसने इस व्यापक रूप से जो चीन की यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन लंबे समय तक वहाँ नहीं रुक सका। 1347 के आसपास वापस आने पर उसने घर जाने का निश्चय किया। 1347 का समय जब चीन से रिटर्न हुआ, लंबे समय तक चीन में न रह सका और उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने घर चला जाएगा। He decided that he returned back their home in 1347. His account is often compared with that Marco Polo, who visited China from his home base in Venice in the late 13th century. उसने जो भारत के बारे में लिखा रिहला में, उसकी किताब की तुलना होती है मार्को पोलो की किताब से, मार्को पोलो के टेक्स्ट से जो मार्को पोलो ने लिखा था। मार्को पोलो एक वेनिस, इटली का यात्री था जिसने चीन की यात्रा की थी भारत होते हुए। उसकी यात्रा विवरण और इब्न बतूता की यात्रा विवरण को तुलना इस कंपैरेटिव स्टडी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है और भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को 14वीं सेंचुरी में समझने में एक माइलस्टोन के रूप में कार्य करती है उसकी बुक रिहला। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे रिहला पे और कुछ टॉपिक पे और। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।